Now we have a fixed bias circuit. Your first biasing circuit is fixed bias circuit, and it is also known as single base resistor biasing, because in this case only one single resistor is used. Now first I am going to draw the circuit for this. We are using NPN transistor, and common emitter configuration is used. Means emitter terminal is grounded. Here RC is the collector resistance. This is your collector, and plus VCC is applied over here. And this is your base terminal. This is your collector, and this is your emitter terminal. This terminal emitter, base and collector. And NPN transistor is used. नाउ बाइसिंग सर्किट में आपका यहाँ क्या डिफरेंस है, मीन्स हम इस प्लस वीसीसी को यहाँ इनपुट पे कैसे अप्लाई कर रहे हैं. बाइसिंग मीन्स हम कैसे इसको सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दिस प्लस वीसीसी इस पॉइंट से it is given to this base terminal, but with the help of one resistor, that is RB. RB is your base resistance and RC is your collector resistance. Right? This is the circuit for fixed biasing के लिए ये सर्किट है आपका. अभी तक till now we have shown two separate power supplies. If you remember, अभी तक हम दो supplies यूज करते थे. एक आप फॉरवर्ड बाइसिंग वाली, एक रिवर्स बाइसिंग वाली, बिकॉज यू हैव टू जंक्शंस. हम टू सप्लाईज यूज करते थे. इफ यू रिमेम्बर, अभी तक हमारा ऐसा कुछ सर्किट होता था, लाइक एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो एक पावर सप्लाई यहाँ पे और एक पावर सप्लाई आपकी यहाँ होती थी, लाइक दिस. Yes, ma'am. Till now we have used two supplies, but now in this circuit we will use only one power supply, that is VCC plus VCC, and it has been used to supply power to collector as well as base. One supply is providing power to the collector and to the base. We have three terminals. Third terminal is grounded, so we need power supply to collector and base terminal, and it is provided using this one supply, that is plus VCC. प्लस वीसीसी डायरेक्टली कलेक्टर को अप्लाई सप्लाई कर रही है थ्रू दिस रजिस्टर, एंड बेस टर्मिनल को थ्रू दिस रजिस्टर आरबी. नाउ इन दिस केस, एज आरबी इज द सिंगल बेस बाइसिंग रजिस्टर, in this we have only used one base biasing resistor. That's why this circuit is also known as single base biasing resistor biasing, because जो हम आगे और टाइप्स करेंगे उसमें आपके यहाँ एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस भी यूज होती हैं. जब हम वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट करेंगे, when we will discuss the voltage divider biasing circuit, in that we will use more than one resistor. In this we are just using one biasing resistor. Now next step is, after the circuit diagram, our next step is to find the coordinates of a Q point, that is VCE and IC. ये हमने दोनों find out करने. And in this case, this is your base terminal and this is your emitter terminal. The voltage between these two is represented as VBE plus minus VBE. VBE denotes the potential difference between base and the emitter terminals. Right? Same, the potential difference between collector and emitter terminals is represented by VCE. And current through this loop is IC, and जो base में current जा रहा है, that is IB. So they all are important. You have to label this diagram like this. Here you have IB, base current, which is flowing into the base terminal, and here we have collector terminal, and the current flowing in this branch is IC.
and the potential difference between base and emitter terminal is VBE, and the potential difference between collector and emitter terminal is VCE. Now, the first step is to find the base current. अगर हमें बेस करंट पता चल जाएगा, बीटा की वैल्यू हमें पता है, then we can find the value of IC by using IC is equal to beta into IB. So my first step is to find the value of IB. And as I have told you कि IB की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, by applying KVL. And KVL किस लूप में अप्लाई करना है? in this loop. इस लूप में हम KVL अप्लाई करेंगे. You just ignore this part. आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने KVL जो अप्लाई करनी है वो सिर्फ इस पार्ट में करनी है. जब आपने बेस करंट फाइंड आउट करना है, देन एट दैट टाइम आप क्या कंसीडर करोगे? सिर्फ इतना पार्ट सर्किट का. दिस पार्ट VBE, ये वाला पार्ट आपने यहां से डिस्कनेक्ट कर देनी है. ये सप्लाई कलेक्टर को नहीं जाएगी, सिर्फ आपने बेस वाला पार्ट कंसीडर करना है. दिस इज नोन एज बेस सर्किट. बेस सर्किट क्यों? क्योंकि हमने अब यहाँ बेस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दिस इज RB. इसी डायग्राम को मैंने टू पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया. वन इज बेस सर्किट एंड दिस वन इज माय कलेक्टर सर्किट. ये मेरा बेस सर्किट है. बेस सर्किट में क्या करना है? जो ये वाला RC है, मैं इसे अज्यूम कर लूंगी कि ओपन सर्किट है. जो मेरा ये है, ये ओपन सर्किट है मेरा. ये वाला पार्ट C मैंने यहां से कर लिया कि मेरा यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा. इस पार्ट में मैंने इस पार्ट को, कलेक्टर वाले पार्ट को ओपन सर्किट अज्यूम कर लिया ताकि मेरा ये वाला पार्ट रहे, सिर्फ ये वाला. तो इसमें अब हम KVL अप्लाई कर सकते हैं. KVL अप्लाई करके इस पार्ट में टेल मी आपकी इक्वेशन क्या आएगी? इस पूरे लूप में ऐसे KVL अप्लाई करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टिल ग्राउंड. कैन यू टेल मी द इक्वेशन फॉर KVL? ट्राई इट. हम VCC से स्टार्ट करेंगे. VCC से स्टार्ट हो जाओ. इट इज VCC plus RB. यस बच्चे, VCC प्लस RB. RB नहीं है यहाँ, प्लस माइनस VCC. ये सारा आपका VCC इज इक्वल टू IB RB, फिर ये वाली वोल्टेज है प्लस VBE. यहां से स्टार्ट हो जाओ. ऐसे आपका करंट फ्लो हो रहा है. IB RB प्लस VBE. दिस इज द इक्वेशन ऑफ KVL. So from here can we calculate the value of IB? हमने IB ही कैलकुलेट करना है. तो IB इस टर्म्स में क्या आ जाएगा? VCC माइनस VBE अपॉन RB. ये आ गया IB की वैल्यू. ये क्लियर हुआ पॉइंट ये वाला? यस मैम. ओके. IB की वैल्यू आ गई आपकी. IB is VCC minus VBE upon RB, बेस करंट. बट वी नो कि अगर आपका अगर ट्रांजिस्टर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तो उसके लिए जो VBE है इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, दैट इज 0.7. अगर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर है तो उसके लिए जो VBE है इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, दैट इज 0.3. दिस थिंग यू हैव टू लर्न कि VBE की वैल्यू 0.7 फिक्स्ड होती है एंड जर्मेनियम का ट्रांजिस्टर है अगर, तो उसके लिए 0.3 वोल्ट्स फिक्स्ड है. जैसे हमारी डायोड्स की कट इन वोल्टेज फिक्स्ड होती थी, सेम VBE की वैल्यू इज फिक्स्ड. सो इफ यू विल सी, जो VBE की वैल्यू है इट इज वेरी मच लेस देन VCC because it is just 0.7 and 0.3 and VCC से इसकी वैल्यू बहुत कम होती है VBE की.
सो वी कैन इग्नोर दिस VBE। तो आपकी IB की वैल्यू क्या आ जाएगी, VCC अपॉन RB। कि अगर आपको क्वेश्चन में सिलिकॉन ट्रांजिस्टर गिवन है तो उसमें VB की वैल्यू 0.7, अगर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर गिवन है इन दैट केस द वैल्यू ऑफ VBE इज 0.3, but the value of VBE is very much less than VCC, so we can ignore this। तो आपकी IB की वैल्यू ये आ जाएगी। So from here we have calculated the value of one coordinate of a Q point। वो कैसे आएगा आपका, अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दो IB को बीटा के साथ, देन आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, IC की। IC की वैल्यू आ जाएगी इफ यू मल्टीप्लाई IB विद बीटा। यही फॉर्मूला होता है IC कैलकुलेट करने का। Now, if you will see here, the value of VCC is fixed. The value of RB is also fixed. Both the values are fixed. It means जो आपका IB है, it remains constant. इसकी वैल्यू भी फिक्स्ड रहेगी, बिकॉज VCC भी आपका पावर सप्लाई फिक्स्ड होती है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फिक्स्ड होती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी जल्दी चेंज नहीं होती एंड VCC की वैल्यू भी फिक्स्ड है। इट मीन्स जो आपका IB आया है बेस करंट वो भी फिक्स्ड होगा। That's why this biasing is known as a fixed biasing। इसका जो नेम है इसे फिक्स्ड बाइसिंग सर्किट बोला गया। Why? Because the value of IB is fixed। Next we have collector circuit। अभी हमने IC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, बट हमें VCE की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, अनदर कोऑर्डिनेट ऑफ अ Q पॉइंट। आई हैव टोल्ड यू कि हमने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, VCE की भी एंड ICQ की भी। सो कलेक्टर के केस में आपका कलेक्टर सर्किट कैसे बनेगा आपका, इसी में से ये था। अगर आप यहां से सप्लाई कट कर दो, इस चीज को ओपन सर्किट कर दो, तो आपका इतना वाला पार्ट रह जाएगा, राइट। अब मैंने सर्किट को टू पार्ट्स में ब्रेक किया। वन इज बेस सर्किट, दिस इज माय बेस सर्किट। बेस सर्किट में मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट से ओपन सर्किट कर दिया कि आपकी जो प्लस VCC है सिर्फ बेस को जा रही है, बिकॉज मैंने IB की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VCE, दिस इज अनदर कोऑर्डिनेट ऑफ अ Q पॉइंट। अब हमने ये भी फाइंड आउट करना है। इस फाइंड आउट करने के लिए हमने KVL अप्लाई करना है। तो KVL आपका सिर्फ इस लूप में आएगा और हम यहां से ओपन सर्किट कर देंगे इसको, कि जो पहले प्लस VCC दोनों को जा रहा था, बेस एंड कलेक्टर को, अब वो सिर्फ कलेक्टर को जाएगा। एंड उस सर्किट को आई एम गिविंग द नेम कलेक्टर सर्किट। तो आपका जो कलेक्टर सर्किट आएगा दैट इज लाइक दिस। RC आ गया, हियर यू हैव प्लस VCC। इस बेस को अब कोई सप्लाई नहीं जा रही हमने, बिकॉज यहाँ प्लस VCC को यहाँ क्या कर दिया था, ओपन कर दिया। IC करंट फ्लो हो रहा है एंड दिस ये सेम है। यहाँ आपका प्लस माइनस VCE, सिर्फ आपका आउटर वाला पार्ट रह गया। बेस वाले को अब कोई सप्लाई नहीं जा रही, बिकॉज हमने उसे ओपन सर्किट कर दिया जब आपने VCE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यही स्टेप्स दूसरे बाइसिंग सर्किट्स में भी अप्लाई हो रहे हैं आपके, जो हमने यहाँ किया, सेम स्टेप्स विल बी फॉलोड देयर। नाउ इसके लिए अब आपका क्या आ जाएगा, इसमें हम KVL अप्लाई करोगे, तो KVL अप्लाई करके क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन। कैन यू अप्लाई KVL इन दिस, ट्राई इट, KVL अप्लाई करो। मैम VCC इज यस इक्वल्स टू यस RC IC यस, माइनस प्लस RC IC आ जाएगा। मैम उसके आगे कौन सी वैल्यू आएगी इसकी? प्लस माइनस यहाँ VCE गिवन है तो आपका प्लस VCE आ जाएगा।
राइट, देन ग्राउंड 0 है। यहाँ कंप्लीट में हमने केवीएल अप्लाई करना है इसमें। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, प्लस वीसीसी इज इक्वल टू आईसीआरसी, यहाँ जो वोल्टेज है, एंड हेयर जो आपकी वोल्टेज है दैट इज प्लस वीसीई, वो आ जाएगा। केवीएल सिर्फ आपका वोल्टेज सोर्सेस के बीच ही होता है। तो हेयर यू डोंट हैव एनी वोल्टेज सोर्स, बट यहाँ रेजिस्टेंस भी है, करंट भी है, तो यहाँ कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो हमने वो लिखी आईसीआरसी। देन आपकी वोल्टेज गिवन है प्लस माइनस वीसीई, वो भी आपकी आ जाएगी। तो अगर आप आउटर लूप में केवीएल अप्लाई कर रहे हो तो वो आपका आ जाएगा वीसीसी इज इक्वल टू आईसीआरसी प्लस वीसीई। और आपका जो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वीसीई, हमने यही फाइंड आउट करना है। तो यहां से आप कर सकते हो, दैट इज वीसीसी माइनस आईसीआरसी इज इक्वल टू वीसीई। ये आ गया। Is it clear? This is the another coordinate of a Q point. VCEQ. Clear? Is it clear? How to find the two coordinates of a Q point? Means using this circuit. So using this fixed bias circuit, we can stabilize the position of a Q point. अगर आप फिक्स्ड बायसिंग सर्किट यूज कर रहे हो, देन वी कैन स्टेबलाइज द पोजीशन ऑफ अ क्यू पॉइंट. So in the next class we will discuss the another category of a biasing circuit, that is collector to base biasing circuit. That is also very simple and same steps will be followed. And advantages of this fixed biasing circuit is that it is very simple and less number of components are required. As we have seen in the circuit, very less number of components are required. But इसकी जो stability होती है that is less. Stability in this case is less. So that's why we will use the another category of a biasing circuit, because इसमें जो stability होती है वो कम होती है in this. So if you have any doubts, you can ask me. Otherwise, you can leave. Any doubts? No, ma'am. Okay, then you can leave.